We'll be hearing from Ms. Neha Jain, guest faculty at SPU Jodhpur, and we will also have a live question and answer session at the end. So feel free to drop your questions in the chat as we go. Before we dive in, just a quick reminder: this session is being recorded, and we will share the PDF afterward, or maybe after the session. Uh, Thank you, Dipanshu. Good evening, everyone. Hope I'm audible. And I'm just sharing my presentation. Just let me know. Another topic, that is the paint and pigment examination. So, like we have discussed yesterday, day before yesterday, about different evidence which might recover in traces at the scene of crime. So, one of the evidence of that category is paint. So, paint, if I say like paint can be recovered in what type of crime scene? Can you guess any type of crime where paint can be the like crucial evidence? Very frequent and very common type of crime. Car accidents. Yes, very true. Good. So, paint and pigments usually recovered in the cases where hit and run collision is there or some automobile accident are there. In such cases, this paint become very crucial and very beneficial evidence because when two vehicles they collide with each other and an accident occurs. So, what happens sometimes? The paint from one vehicle got transferred to the paint of the another vehicle. So during those physical examinations, when that forensic evidence is being looked for and collected, we usually prefer paint chips. So from there, the importance of paint and pigment examination arises, mostly in forensic cases. But not only like it's restricted to these type of cases only. Might be if suppose a house is newly painted and something happened in that house, so that can another type of crime, some sort of like robbery, combined with murder or something. So paint can be another important evidence but might recover in traces, like the weapon of offense is having some traces of paint. Okay, or might be like there is a footprint in that wet paint. So that is like paints is there, coatings are there, but they are giving some impressions. So in this way, paint, pigments, and coatings are linked and help in establishing that yes, the perpetrator was present at the scene of crime or it is belonging to the victim. So we'll discuss about today what are paints. Like we have generally a broader term we are using paints. So what all comprises of paint? So we'll discuss that. Then different types of paints. What are those? Forensic significance, which I have given you a little bit of idea. Then how we collect and preserve the paint samples, and then forensic analysis. So, starting with what exactly are the paint and the coatings? If I say paint, so some sort of different colors come to your mind: red, blue, green, orange, kind of thing. Okay, or like some coatings, like those might be you. Some of may uh, got some imagination of those colors, and some may get those bigger cans or containers of those paints, like जैसे आपका Asian, Nerolac, इस type का. ठीक है. So these are also paints. Means we recovered them. These are those paints and those coatings only. So what exactly the paint is? It is a, we can say, a mixture that contains some sort of opaque, viscous, and colored suspension of pigments mostly. Like we have red color paint, we have blue color paint, and so forth. So what is that? That is a mixture, a combination that contains different sort of pigments, means some sort of chemicals which impart color to that thing. Then some sort of resins, that thicky things. Okay, which gives that viscosity, because paint is not like, if you go for the fluidity of paint, it is not as same as that of water, it is not same as that of like alcohol or that of acetone. It is quite different, it is thicker. Like we have honey, so honey is much more thicker. Then we have those some sort of resinous substances which is quite thicker. जैसे कभी आप कोई कफ सिरप वगैरह लो, ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा वो नॉर्मल लिक्विड से थोड़ा सा थिक होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्टिकी होगा, ऐसा भी नहीं होगा. So it's a like in between. So in the same way, paint are like that because of the presence of resins and some sort of binders which are, so these pigments, resins, and binders, they are nothing but they are all chemical compounds. We have a huge variety of chemicals, organic and inorganic chemicals, which are mixed together based on their property. Like some may impart color, some may impart that viscosity, some may act as a binder, means they keep the molecules together, and some may protect the surface over which that paint needs to be applied.
So in this way, a paint is being created. So it's what? It's a mixture. So any surface coating which is applied onto that surface, either for the protection purpose, either for the decoration purpose, either for the creativity, to give it a beautiful or flourish appearance, that is paint. So पेंट में आपका सिर्फ कलरफुल चीज नहीं आ रही है, पेंट में आपका अगर सपोज इफ यू हैव सम वुडन मटेरियल, उसके ऊपर आप बोल रहे हो कि हाँ जैसे बोलते हैं पॉलिश खराब हो गई है वुडन की, ठीक है, इसमें वो ग्रेस नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप एक कोटिंग करवाओगे. दैट कोटिंग इज व्हाट? दैट कोटिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पेंट. कभी कभी थिनर्स वगैरह थोड़े बहुत यूज होते हैं, तो इस पेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें समटाइम्स दोस थिनर्स एंड अदर पिगमेंट्स, सच टाइप ऑफ केमिकल्स विच मे एक्ट एज थिनर्स, रेजिन्स, जैसे आपको फेविकोल में से स्मेल आता है, इस तरीके के स्मेल वाले केमिकल्स भी वी यूज टू ऐड इन द पेंट. सो पेंट इज अ लिक्विड मिक्सचर विच व्हेन स्प्रेड ऑन टू द सर्फेस इट लीव्स अ हार्ड फिल्म. जब हमने उसे सर्फेस पे वी हैव स्प्रेड इट, हमने उसे फैलाया जिस भी सर्फेस पे वी नीड टू पेंट, देन इट लीव्स अ हार्ड फिल्म, मींस अ कोटिंग फॉर्म करेगा, बिकॉज it is having so many things in it, like pigments भी है उसमें, binder भी है, and which get suspended in some sort of medium. और उनमें ये प्रॉपर्टी होती है because along with these things some solvents are also added. तो वो solvents क्या है, उनको ड्राई करने में मदद करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक हार्ड और थिक सी फिल्म फॉर्म हो जाती है. जब कहते हैं पेंट अभी वेट है बट थोड़ी टाइम बाद कहेंगे पेंट सूख गया है, सो दैट इज बिकमिंग हार्ड, एक मोटी सी लेयर डिपॉजिट हुई है, जैसे ऐसा एक्ट करेगा. So these coatings they may be applied either by the brush, by the rolling, जिस भी तरीके से हमें अप्लाई करना हो. Sometimes like electrode positioning टाइप के भी आ गए हैं, पाउडर कोटिंग भी आ गई है. अब जैसे आप देखते हो कि आजकल जो चल रहा है वो कुछ ऐसे मशीनरी टाइप चल रही है, ठीक है, जिसमें रोलर होता है एंड यू क्विकली डू दैट. सो दैट इज लाइक आप स्प्रे भी कर सकते हो, आप वो रोलर को भी स्प्रेड कर सकते हो लाइक दैट. तो मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पेंट आर जनरली अगर हम कंसिडर करेंगे बाइंडर्स एंड पिगमेंट्स. So the most important component is pigment, because pigments are what? They are those chemicals which are responsible. And when we like hear this term paint, so those imaginations of different colors or different designs and so on, so this is because of the presence of these pigments in the paint. So pigments are what? They are nothing but a mixture of organic and inorganic compounds. आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक में मींस ऐसे मेटल, जैसे हमने कल क्लास में वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑक्साइड्स ना होके उनके सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइक उनके सल्फेट सॉल्ट हो सकते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट हो सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स. तो वो इनऑर्गेनिक है एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो देयर, जिसमें आपके सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉलिड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. So these compounds, these chemical compounds of both organic and inorganic nature, they combine together in a fine powdered state, granular powder, जिसमें मतलब छोटे छोटे granules होते हैं, जैसे आप चॉक को पीस के पाउडर बनाओ उसमें तो छोटे छोटे granules उसमें रहेंगे. तो ये granules जो है they impart color to the surface over which the paint was spreaded or applied. They are insoluble in the medium in which they are dispersed. तो ये क्या करते हैं, जिस भी मीडियम को ले रहे हैं, जिस भी सॉल्वेंट को ले रहे हैं, उसमें ये क्या करेंगे, ये आपके ऐसे इनसॉल्युबल रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे. जस्ट अ सेकंड प्लीज. Yeah. So this was about the pigments. Then next we have binders or resins. What are they doing? The binders is that portion of the paint coating which is not same with the pigment or same like pigment, but they allow those pigment granules to get distributed across the surface. इसलिए हम जब पेंट कभी कराते हैं तो इट्स लाइक ऐसा नहीं होता कि बहुत लम्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो एक बहुत मोटी सी लेयर बन के ऐसे स्क्रेप ऑफ हो सकता है. तो ये बाइंडर्स क्यों ऐड करे जाते हैं उसमें, तो रेजिनस सब्सटेंसेस क्यों ऐड करे जाते हैं, क्योंकि वो जो ग्रेन्यूल्स है छोटे छोटे से लाइक छोटे छोटे से मोती टाइप की चीजें जो आपके पिगमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रैन्यूल्स, ठीक है, वो इन ये जो पिगमेंट के ग्रैन्यूल्स हैं, वो जो ग्रैन्यूल्स हैं बिकॉज ऑफ दीज बाइंडर्स और रेजिन, ऐसे केमिकल्स हैं ये बाइंडर्स और रेजिन के, कि वो उन पिगमेंट को ऐसे क्लम्प नहीं बनाने देते, उनको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करके रखते हैं सर्फेस के ऊपर. और इसके लिए वी रिक्वायर सम मीडियम, क्योंकि हमें इन ग्रैन्यूल्स को डालने के लिए कोई सॉल्वेंट चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, तो वहाँ ये बाइंडर्स एक्ट करते हैं, सो दैट दीज पिगमेंट ग्रैन्यूल्स दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर टू द सर्फेस. The binder it can be mixed with some other additives, like कुछ आप डीलस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो, कुछ सर्फेक्टेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ ड्राइंग एजेंट्स ऐड कर सकते हो, लाइक जैसे कि अगर हम एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं कि मे बी थोड़ा वाटरिश कंपाउंड, वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो, मॉइस्चर हो तो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, कुछ सर्फेक्टेंट्स आप ऐड कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है, तो डीलस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो. माइट भी हो सकता है पिगमेंट आपको बहुत फ्लोरोसेंट दे रहा हो कलर, तो आप थोड़ा सा उसका वो शाइन कम करने के लिए आप डीलस्ट्रेंट, लस्टर मीन्स शाइन,
and when we add de to that, that becomes delustrant, opposite of luster, means आप उसकी shine कम कर रहे हो. Then vehicle, that is the third component. It is basically, the term is vehicle, but it is not like that automobile. Here by the vehicle we mean a film former that refers to the solvent. जो हम solvent use कर रहे हैं या जो resin है या कोई additive उसमें कर रहा है जो कि उस pigment को bind करके रख रहा है surface पे, क्योंकि paint is all about pigment study. ठीक है, आपका सपोज ये सरफेस है जिसपे आपने पेंट करा, ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर बाइंड करने का काम जो कर रहा है वो आपका ये रेजिन और व्हीकल मिलके करते हैं. वो सॉल्वेंट और ये रेजिन्स, ये दोनों इस पिगमेंट को इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं ताकि हमें एक अच्छा सुंदर कलर मिल सके फॉर द पेंट. देन सॉल्वेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई ना कोई सॉल्वेंट रहेगा जिसमें हम उन्हें मिक्स करेंगे. सो समटाइम्स वी ऐड दीज हार्डनर्स टू द पेंट लाइक इथाइल एसीटेट, टोलुइन, ये सब ऐड करा जाता है उसमें. समटाइम्स कुछ थिनर्स या सॉल्वेंट्स जो कॉमनली यूज होते हैं लाइक ब्यूटाइल एसीटेट, इथाइल बेंजीन, टोलुइन, xylene, मिथाइल इथाइल कीटोन. Then some base coats are also there. जैसे आप थोड़ा सा resinous समझ लो, that will again like this, titanium dioxide, metallic pigments, xylene. Then we have these clear coats. Again the chemicals remains to be the same, but ये है कि आपको ना multiple layer में apply करना पड़ता है. Little bit same रहेगा composition, चाहे आप clear coat लो, base coat लो, primer लो, but आपको क्या होता है layering करनी पड़ती है ताकि वो पेंट वहाँ पे स्टिक करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सपोज अगर इफ आई टॉक ऑफ व्हीकल, आपने अभी व्हीकल को फ्रेशली पेंटेड न्यू आपने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, सो उसका कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट द मोमेंट उस पर डेंट पड़ा तो पेंट थोड़ा सा स्क्रेप आउट हुआ, ठीक है, अब आप या सपोज कुछ डैमेज हो गया तो आप चाहोगे कि आप न्यू पेंट करवाओ. तो आप जो न्यू पेंट करवाओगे उसमें वो इतनी सारी चीजें ऐड करेगा, मल्टीपल लेयर्स उस पर कोट करेगा. वाई? इट्स बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगा जो भी पर्सन है, ठीक है, तो क्या होगा, अदरवाइज द व्हीकल वुड नॉट एक्वायर दैट शाइन. ओके, उसको वो शाइन नहीं मिलेगी, उसको वो लस्टर नहीं मिलेगा. तो वो ऐसे नॉर्मल आप लाइक अब व्हीकल को आप देखोगे तो वो है क्या, इट्स ओनली अ सॉलिड काइंड ऑफ थिंग मेड ऑफ सम आयरन पार्ट, ठीक है, आयरन बॉडी एक टाइप से. अगर आप उसको ऐसे ब्यूटिफिकेशन के लिए मल्टीपल लेयर्स में नहीं कोट करोगे, सो दैट विल बी very difficult to look different among other kind of vehicles which are driven on the road. तो इसलिए वो पेंट को मल्टीपल लेयर्स में कोट करते हैं एंड द इंग्रेडिएंट्स रिमेन्स टू बी समवट सेम. बट होता क्या है, मल्टीपल लेयर्स में करने की वजह से पेंट क्या है उस पर स्टिक करके रहता है. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप हर 6 महीने में अपनी गाड़ी पेंट करा रहे हो, हर 1 महीने में आप अपनी गाड़ी पेंट करा रहे हो. नो, आप जो पेंट कराते हो वो सस्टेन करता है फॉर लाइक कपल ऑफ ईयर्स अंटिल एंड अनलेस कोई बिगर प्रॉब्लम ना हो. तो दैट्स व्हाई दीज केमिकल्स आर यूज्ड. सो we will let's study it in a little detail. What are the all pigments we can use? So we have inorganic pigments, which are what I have told you. We have pigments, solvent, resins, and vehicle, which is a combination of all these things. So inorganic pigments, pigments are the first part, which may have inorganic and organic. Inorganic have the ability to minimize the substrate shade difference. अगर हमारे को suppose red के ही multiple shades दिख रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे crimson red, then we can say like brick red. एक होता है ईट वाला कलर, कुछ लोग उसको रेड बोलते हैं. एक होएगा बिल्कुल जो आपका रेड कलर आता है, ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह का कलर है, कुछ लोगों के लिए वो भी रेड है, कुछ लोगों के लिए रेड का थोड़ा सा हल्का सा शेड, ठीक है, वो रेड हो जाता है. तो इसलिए वो सबस्ट्रेट शेड डिफरेंस को क्या करता है, मिनिमाइज कर देते हैं. इनऑर्गेनिक पिगमेंट इसलिए प्रेफर करे जाते हैं. तो सम ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू इम्पार्ट डिफरेंट कलर, लाइक टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो व्हाइट कलर दे रहा है, लेड क्रोमेट, क्रोमेट जब भी आ जाएगा तो मोस्टली येलो कलर आता है, iron oxide red color, chromium oxide green color, like that. Then we have organic pigments. Organic pigments क्या होता है, जो आपके organic dyes usually होती हैं, जैसे methylene blue, aniline blue, amido black. Most of you have heard of amido black, जो कि हम आपके blood containing fingerprints जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए we use this amido black. बाकी aniline blue भी बहुत सारे like biological applications में यूज होती है. We have methylene blue, metanyl yellow, रोडामीन, इस टाइप की बहुत सारे ऑर्गेनिक पिगमेंट्स और डाइज आते हैं. वाई दे आर ऑर्गेनिक? बिकॉज उसमें जो उनकी केमिस्ट्री है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कलर इम्पार्ट करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर ऑर्गेनिक पिगमेंट्स. देन वी हैव सम मेटालिक एंड पर्सेंट पिगमेंट्स, जो कि थोड़ा सा लस्टर, थोड़ा सा कुछ हो सकता है बहुत डल हो, थोड़ा सा शाइन देने के लिए वी कैन ऐड दीज मेटालिक पिगमेंट्स, जैसे कि आपने गोल्ड, ब्रॉन्ज, जिंक फ्लेक्स ऐड कर दिए. फिलर्स और एक्सटेंडर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, मैग्नीशियम सिलिकेट एक्सेट्रा. ये क्या करते हैं, ये मिनिमाइज करते हैं कि वो जो कलर आया है वो फेड बहुत जल्दी ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी क्रैक्स ना पड़े, ठीक है. इट विल रेजिस्ट एब्रेजन, ठीक है, जो डेली वेयर एंड टियर वाली चीज़ें पॉसिबल हैं. आपका व्हीकल किसी से ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट जैसे कहते गाड़ी ठोक दी, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज,
तो वो थोड़े से भी हल्के से डेंट पड़ा है उसको वो अवॉइड कर सके, ठीक है, या हल्का सा भी कुछ टच हुआ है, स्क्रैच मार्क्स, उन सबको अवॉइड कर सके, इसलिए हम ये थोड़े से एक्सटेंडर पिगमेंट्स कभी कभी ऐड करते हैं. Then we have resins. The second component of paint is resin. Resins जो है, these are the portion of the system of this paint system that holds everything together. तो resin जैसे मैंने बताया, जैसे सपोज एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा जेल अगर आपने कभी देखा तो उसे जेल का नाम दे रहे हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज क्वाइट थिक. तो इसी तरीके से जो आपके रेजिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत विस्कस से, बहुत स्टिकी टाइप का थिक मटेरियल होता है, जो कि अगर आप जैसे आपका जेली टाइप मटेरियल, ठीक है, तो उसका काम क्या है, वो इन पिगमेंट्स को सॉल्वेंट में होल्ड करके रखेगा एक साथ ताकि कलर आ सके. बट ऐसा भी नहीं कि क्लम्प कर देगा उन्हें कि ऐसे बॉल बन गई उन पिगमेंट्स की, नो, ऐसे रखेगा कि यहाँ भी स्प्रेड है यूनिफॉर्म, यहाँ भी स्प्रेड है, यहाँ भी स्प्रेड है, लाइक दैट. तो resins again, these are organic compounds, and we have different types of resins depending on to their chemistry. So the most common type are जो पेंट में फाउंड किए जाते हैं. एंड व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, बिकॉज व्हेन वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ पेंट, सो at that time we must aware of the paint chemistry, what all pigments it is having, how the paint is like composed of. So we have acrylic resins which are made up of monomers of acrylic and meta acrylic acid esters. तो ये acrylic नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये acrylic ester से बने हैं, ठीक है. तो अब ये बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं. पॉलीमर क्या होता है, आपका सपोज जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो क्या है, पॉलीमर्स हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं आपके ग्लूकोज की. मतलब ग्लूकोज का एक यूनिट है ग्लूकोज की, अब उसके साथ मल्टीपल ऐसे ग्लूकोज के यूनिट जुड़ते जाए. या यू कैन इमेजिन इट लाइक जैसे कि एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, जैसे हम चेन खेलते थे बचपन में, आई होप यू पीपल ऑल हैव खेला होगा आपने भी. मतलब उसको ज्वाइन करते जाना सेम तरीके से, ठीक है. एक पर्सन है, उसने कुछ ऐसा करा तो नेक्स्ट पर्सन ने उसको एडजॉइन करा, नेक्स्ट ने उसको एडजॉइन करा, लाइक दैट. बट वो हम एक लाइक आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन. बट इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स में जो स्ट्रक्चर एक है उसी के जैसे एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर से एक चेन में ज्वाइन करते रहते हैं, इधर इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, या फिर किसी दूसरे वे में एक कोई शेप लेके भी हो सकता है. तो वो आपका बन जाता है पॉलीमर. जब मोनोमर, सिंगल चीज मोनोमर, और जो मल्टीपल अटैच हो जाए तो वो बन जाता है पॉली, मीन्स मैनी, पॉलीमर. तो ये आपका एक, जितने रेजिन है मोस्टली वो पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं. ये थोड़ा सा केमिस्ट्री उस पर जा रहा है, ठीक है. तो एक्राइलिक क्या है, दीज आर द मोनोमर्स विच आर मॉडिफाइड विद फंक्शनल ग्रुप्स विच एड क्वालिटीज लाइक, जो हम एक्राइलिक यूज करते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्पार्ट कर रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट कर रहे हैं, और केमिकल रेजिस्टेंस दे रहे हैं हमारे पिगमेंट और पेंट को, कि फर्दर इतने केमिकल उसमें जा रहे हैं तो कोई केमिकल उससे रिएक्ट ना करे, फ्लेक्सिबल रहे, वो ड्यूरेबल रहे, ज़्यादा टाइम तक चले. दैट्स व्हाई एक्राइलिक रेजिन्स आर यूज्ड. देन वी हैव अमीनो रेजिन्स. अमीनो रेजिन्स फॉर्म्ड होते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, यूरिया और मेलामाइन. जैसे मेलामाइन की क्रॉकरी आपने सुनी होगी. मेलामाइन इज व्हाट, मेलामाइन एक सिंगल चीज़ है बट वो पॉलीमराइज होकर मल्टीपल वो बना रहे, चेन बना रहे हैं, ठीक है. तो मेलामाइन या यूरिया को हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं और वो मल्टीपल चेन बनाता रहता है. So these resins blended with alkyd, polyester, acrylic and epoxy resins, ये अलग अलग टाइप के resins हैं. तो ये अमाइनो resins बाकी resins के साथ अटैच करता है, एक क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड ऐसे काइंड ऑफ फॉर्म करेगा, ठीक है, ताकि वो इजीली एयर ड्राई हो सके पेंट, ठीक है, और उसकी ड्राइंग जल्दी हो, क्योंकि जब हम पेंट कर रहे हैं तो वी वांट अ क्विक ड्राई मैकेनिज्म काइंड ऑफ थिंग. तो आपके अमीनो resins देते हैं along with the combination of further other resins. Then next type we have alkyd resins. They are formed by the polymerization and condensation of polyol, मतलब polyalcohol जिसमें बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, एंड एसिड. उनको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, लाइक एक्राइलिक, यूरिथेन, सिलिकॉन, विनाइल कंपाउंड्स, और हमारे को जो भी अपनी प्रॉपर्टीज चाहिए, चाहे हमारे को अच्छा लाइक फिनिश चाहिए, प्रॉपर से डिस्पर्शन चाहिए पिगमेंट्स का, तो उसके लिए हम ये alkyd resin यूज करते हैं. Then we have epoxy resin. This is another common type of resin which is used in these paints and pigments. So they are usually made from this compound, epichlorohydrin and bisphenol A. ठीक है, इनसे मिक्स होके आपके बनते हैं इपॉक्सी रेजिन. मतलब ये कुछ रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है जिनके पर्टिकुलर नाम है. इपॉक्सी रेजिन कैसे बनाएगा, इपॉक्साइड बनाएगा. अगर एल्काइड बना रहा है कुछ तो वो एल्काइड रेजिन हो जाएगा. तो इनके नेमिंग भी उसी अकॉर्डिंग है, ठीक है. तो ये इपॉक्सी रेजिन क्या है, एक्राइलिक के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, एल्काइड रेजिन के साथ भी कर सकते हैं, अमाइनो रेजिन के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं ताकि फर्दर प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाए. देन वी हैव विनाइल रेजिन. विनाइल रेजिन्स दे आर बेस्ड ऑन विनाइल क्लोराइड. आपका एक कंपाउंड होता है विनाइल क्लोराइड, जैसे हमने सुना होगा पीवीसी के पाइप्स आ रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड.
तो दैट पीवीसी इज व्हाट, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की मल्टीपल यूनिट्स एक साथ अटैच हैं, ठीक है, और जिसने मिला के क्या फॉर्म करा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे ये विनाइल क्लोराइड जो है इसके ऊपर बेस्ड है विनाइल रेजिन, इसको पॉलीमराइज करा जा रहा है, ठीक है, और अलॉन्ग विद विनाइल एसीटेट और विनाइल क्लोराइड को साथ में लेके कंबाइन करा जा रहा है, फिर पॉलीमराइज करा जा रहा है, ठीक है। तो जो आपके आर्किटेक्चरल लाइक स्टफ में जो पेंट आपको नजर आ रहे हैं, वहाँ जो कोटिंग्स रहती हैं, सपोज थोड़ा सा एम्बॉस्ड टाइप की कोई कुछ हो, कोई जैसे कोई बहुत अच्छी आर्ट वर्क टाइप हो जिसपे ऐसा कुछ पेंट हुआ हुआ हो, ठीक है, उसमें आपको विनाइल रेजिन मिलेगा, लेटेक्स पेंट टाइप। So this is like how the bonding is there. This is the example of alkyd resin, ठीक है। जैसे अब ये मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल ने मल्टीपल टाइम्स कंबाइन किया, मोनो ने साथ में कंबाइन किया, एंड वी गेट पॉलीएस्टर, एल्काइड पॉलीमर। मतलब ये केमिस्ट्री, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस केमिस्ट्री, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कुछ ड्यूरेबिलिटी के लिए, लाइक दैट। देन दिस इज पॉलीयूरेथेन टाइप, लाइक अमाइनो रेजिन, अमीन ग्रुप अटैचेस में, और ये ऐसे सिंगल था ये, ठीक है, फिर इसने इसके साथ कंबाइन करा एंड इट फॉर्म्स लाइक दिस, ऐसे मल्टीपल लेयर्स फॉर्म करता है। देन दिस इज विनाइल टाइप, तो जरूरी नहीं है विनाइल एसीटेट ही हो, कोई भी कंपाउंड हो सकता है विनाइल ग्रुप कंटेन। एक्राइलिक टाइप, दिस इज मेथाक्राइलिक एसिड, मिथाइल मेथाक्राइलेट एंड ब्यूटाइल। तो अगर हम ब्रांचिंग कर देंगे फर्दर तो वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म होता जाता है। दिस इज इपॉक्सी टाइप, दिस इज एक्राइलिक इपॉक्सी, एक्राइल के साथ कंबाइन कर रहा है। सो दीज वर रेजिन्स, ठीक है। सॉल्वेंट कैन बी एनी, आपका कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, एंड मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं बिकॉज वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। एंड द व्हीकल दैट वी हैव डिस्कस्ड इज लाइक, वो एक ऐसा मीडियम है जिसमें तीनों चीजें एक्ट कर रही हैं, इसलिए उसको एक टर्मिनोलॉजी के रूप में दिया गया है व्हीकल। तो कॉमन टर्म्स लाइक डाई, जैसे मैंने बोला पिगमेंट है, डाई है, तो एक्चुअल में है क्या, कलरिंग एजेंट है जो कि एक मीडियम जो है उसमें सॉल्यूबल है और डिस्पर्स होता है। इनेमल, कभी कभी आपने टर्म सुना होगा इनेमल। सो इनेमल इज व्हाट, अ पिगमेंटेड कोटिंग, ठीक है। यहाँ पे टीथ वाला इनेमल नहीं है, ये इनेमल है आपकी कोटिंग, जिसमें बहुत ग्लॉसी, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी होती है। आप इनेमल का कोट कराते हो, जैसे मैंने अभी बताया था वुडी सरफेस वगैरह उनकी पॉलिश हट गई हो, सो वी अप्लाई दोज इनेमल्स, ठीक है। इनेमल की कोटिंग कराई जाती है ताकि उनमें वो ग्लॉसीनेस वापस आ सके, बहुत हाई रिफ्लेक्टिविटी होती है उनकी, बहुत हाई चमक होती है। देन लेकर, इट इज लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टू इनेमल। तो ये क्या है, ये भी पिगमेंटेड कोटिंग है जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है बिकॉज सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है। लेटेक्स, सस्पेंशन ऑफ द पिगमेंटेड वाटर बेस्ड इमल्शन ऑफ डिफरेंट रेजिन्स। देन शेलेक क्या है, एक मेल्टेड लाक टाइप का रेजिनस सब्सटेंस है, जैसे लाक इंसेक्ट से आ रहा है, थोड़ा एडेसिव टाइप का काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी यूज हो जाता है, उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करके यूज कर लेते हैं एज एडेसिव, ग्लू टाइप की चीज बना देते हैं। स्टेन आपका डाई का सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसमें फर्दर चीजें नहीं एडेड है। वार्निश, अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ ऑयल्स। वार्निश में क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल है बट थोड़ा सा थिक, जैसे ऑयली मटेरियल है, तो मोस्टली सिंथेटिक रेजिन उसमें डिसॉल्व करें उनसे बनता है। सो दिस वाज अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ पेंट। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ पेंट। अब हमें पेंट ब्रॉडली किस किस टाइप में मिल सकते हैं। वी कैन हैव आर्किटेक्चरल पेंट, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड पेंट जो रहते हैं वो जनरली आपके आर्किटेक्चरल पेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, बहुत स्लो ड्राइंग पेंट होते हैं, बहुत धीरे धीरे ड्राई होंगे। देन वी हैव प्रोडक्ट कोटिंग्स, ठीक है, तो वी हैव दोज ऑटोमोबाइल पेंट्स या प्रोडक्ट कोटिंग्स, तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर these things. Then we have special purpose coatings. So these special purpose coatings are like the protection from the aesthetic improvement और aesthetic environment, जैसे कि सपोज skid resistant हमें environment देना है, waterproofing का environment देना है, ल्यूमिनेसेंस इम्पार्ट करनी है, ठीक है, किसी चीज़ पे, जैसे होता है कि हाँ भाई पेंट अप्लाई कर दिया, जैसे रिस्ट वॉच का डायल वगैरह, तो पर्टिकुलर टाइप की कोटिंग्स होती हैं। देन वी हैव आर्टिस्टिक पेंट्स। सो दीज आर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ पेंट्स विच आर डिजाइन टू लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दे आर मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग ऑयल्स एंड पिगमेंट्स। तो आपके जो आर्टिस्टिक पेंट है वो ऐसा लगता है जैसे कि नेचर से जो चीज़ें ली गई हैं उनसे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं कब, जब आपको कोई पेंटिंग फॉर्जरी का केस है, हाँ भाई ये पेंटिंग जो है इतने की ली, इतने की रीसेल कर दी, तो वेदर इट वाज ऑथेंटिक, ओरिजिनल और नॉट, लाइक दैट। जैसे स्कल्पचर आर्ट है कुछ लाइक दैट। सो आर्किटेक्चरल
आर्किटेक्चरल पेंट में जो कॉम्पोजिशन होता है, वी हैव डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, आपका थाइमोल हो सकता है, सोया ऑयल, कैल्शियम नेप्थिनेट, सो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शन। लाइक कोई पिगमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, अल्ट्रामेरिन ब्लू, कुछ जो है ड्रायर की तरह एक्ट कर रहा है, सब में एक्ट एज ऑयल, सब में एक्ट एज अगेन पिगमेंट, सब में एक्ट एज सॉल्वेंट, एक्सटेंडर, बाइंडर। सी alkyd resin is there and it is acting as a binder. Then automotive paint. So automotive paint usually हमारे जो vehicles के ऊपर पेंट है, so these are what they require, जो आपके व्हीकल से they require प्री ट्रीटमेंट मीन्स फर्स्ट कोटिंग। तो सबसे पहला जो लाइक बिल्कुल एक फ्रेश व्हीकल जो होगा उसके ऊपर एक फर्स्ट कोटिंग की जाएगी, वो होती है आपके प्री ट्रीटमेंट, ठीक है। इट इज टिपिकली अ जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपकी जो व्हीकल की बॉडी है दैट इज ऑल टुगेदर ऑफ आयरन, सो दैट्स व्हाई अ जिंक की उसको कोटिंग करी जाती है विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, जो आपकी व्हीकल की बॉडी है, ताकि वो रस्ट वगैरह को अवॉइड कर सके, स्टील की, आयरन की। तो इट इज देन वॉश्ड विद अ डिटर्जेंट, इट इज प्रॉपर्ली रिंस्ड एंड ट्रीटेड सेकंड टाइम विद दिस जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड देन अगेन इट इज वॉश्ड ऑफ। देन आपका सेकंड कोट जो अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर वो होता है आपका प्राइमर। तो इस सीक्वेंस में हमेशा व्हीकल या कोई भी ऑटोमोबाइल पेंट करा जाता है। द फर्स्ट वन इज दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग, सेकंड इज द प्राइमर। इट इज यूजुअली दी रेजिन, जो आप रेजिन अप्लाई करते हो दैट इज दिस। तो मोस्टली इपॉक्सी रेजिन होता है ताकि कोरोजन रेजिस्टेंट पिगमेंट रहें, ठीक है। कभी आपका एक्राइलिक रेजिन भी हो सकता है, लाइक ड्यूरेबल एक्राइलिक रेजिन आपका जाएगा सॉरी फॉर द टॉप मोस्ट लेयर पे जाएगा फॉर इंक्रीजिंग द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये आपकी सेकंड लेयर है। वी हैव दिस इपॉक्सी रेजिन कोरोजन फ्री एनवायरनमेंट के लिए, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट जो प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करा जा रहा है, जो व्हीकल की बॉडी है लाइक इट इज डिप्ड इन अ लार्ज बाथ कंटेनिंग दिस प्राइमर, मतलब जैसे पूल काइंड ऑफ थिंग जिसमें आप व्हीकल की बॉडी को ऐसे रख रहे हो, so that entire vehicle get coated with this second coat of primer. So primer coating is finished with the powder primer surfacer which smooths this surface further कि बहुत अच्छे से adhering हो सके। Then that was like general thing कि आपको एक बेसिकली व्हीकल अगर है तो जनरली व्हीकल पे सबसे पहले क्या होगा, जिंक की कोटिंग, ठीक है क्या आपका व्हीकल क्या है, एक लोहे की स्टील की बॉडी है तो थोड़ा एक बेस कोट उस पर कर रहे हैं, दैट वाज दैट, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड कोट करा प्राइम, देन यू हैव टॉप कोट। तो टॉप कोट इज व्हाट, इट इज द थर्ड टाइप ऑफ कोटिंग व्हिच इज अप्लाइड टू द व्हीकल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कलर, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि मल्टी लेयर कोट करो। मतलब सपोज अगर हमारी गाड़ी ब्लू कलर की है तो एक बार हमने वो ब्लू लेयर कोट करी, ठीक है, हमें लग रहा है कि नहीं और होना चाहिए, अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर हम एक और बार उस लेयर को कोट कर देंगे सेम, सो दैट इज द टॉप कोट। सो इट कैन बी अ सिंगल लेयर कोट और इट कैन बी मल्टी लेयर कोट और मेटालिक कलर कोट। सो ये जो लेयर है ये आपकी बेसिकली डिसाइड करती है कि आपका व्हीकल किस कलर का है। तो इस लेयर में आपके पिगमेंट्स रेजिन सब है, प्लस आपके कुछ मेटालिक और पल्सेंट कोटिंग्स भी कभी कभी पिगमेंट्स भी इसमें ऐड कर दी जाती हैं जो थोड़ा सा उसे शाइनी बनाते हैं। जैसे कि पहले तक मार्केट में क्या ट्रेंड था, इट्स ऑलवेज लाइक व्हाइट कलर कार एंड रेड कलर कार इन वेरी अर्लियर टाइम्स, देन लाइक स्लोली एडवांसमेंट इज टेकिंग प्लेस, फिर आपके पास ब्लैक कलर कार आने लग गई, ठीक है, ग्रे कलर कार निकल गई, देन बीच में आपका नेवी ब्लू कलर निकला, मेरून कलर निकला, लाइक दैट, ऑरेंज कलर निकला, येलो कलर निकला। तो यू कैन कंपेयर कि आपका जो येलो वाला है वो एकदम से लगने वाली चीज़ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मे बी उसमें मेटालिक और पल्सेंट कोटिंग ज़्यादा एडेड होगी, और हो सकता है एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा सटल कलर पे जाओगे तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके की पिगमेंट या कोटिंग्स उसमें ऐड की जा रही है। तो मेटालिक पिगमेंट्स में आपका जिंक, निकल, स्टील, गोल्ड, ब्रॉन्ज, एनीथिंग कैन बी देयर व्हिच गिव्स अ दैट ग्लिटरिंग फिनिश टू द व्हीकल, ठीक है। और जो पल्सेंट पिगमेंट्स हैं लाइक योर मिका चिप्स कोटेड विद टाइटेनियम डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, सो व्हाट दे आर डूइंग, ये उस जो लस्टर उससे आया है मेटालिक पिगमेंट की कोटिंग से, उसको और क्या रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और जो आपने ओवरऑल कोटिंग करी थी, टॉप कोट जो करा है जिस लेयर का, तो वो उसको और एनहांस कर रहा है। तो एक टाइप से एक ब्यूटीफुली डिजाइन जो आपको व्हीकल दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टॉप कोट। देन द लास्ट कोट और द फोर्थ एंड द लाइक जो सबसे टॉप की कोटिंग है, डोंट गो फॉर द नेम्स, ठीक है। टॉप कोट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टॉप कोट जो है बिल्कुल टॉप वाला कोट है, उसके ऊपर हम एक और कोटिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लियर कोट। तो वो हम क्यों कर रहे हैं, वो उसमें कोई पिगमेंट नहीं होती, उसमें कोई कलर नहीं होता, वो सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है पेंट की वो बनी रहे, उसकी वो ग्लॉसीनेस बनी रहे, वो सन की प्रेजेंस में उसकी धूप से सनरेज से खराब ना हो, ऐसा ना हो कि उस पेंट में क्रैक्स पड़ जाए, लाइट के साथ वो फेड ना हो, लाइक दैट। सो दीज आर क्लियर कोट्स। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक्राइलिक रेजिन्स, एक्राइलिक पॉलीमर्स या फिर आपके अमाइनो रेजिन्स जो भी हमने पढ़े थे, पॉलीयूरेथेन पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि एच रेजिस्टेंट बनाते हैं, उससे ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें इम्पार्ट करते हैं।
So that's why chemistry we have studied first, and then these automotive paint, क्योंकि जो फोरेंसिकली इंपॉर्टेंट जाता है जो ट्रेंड में देखा गया, दैट इज दिस ऑटोमोटिव पेंट. तो हमारे पास 4 लेयर ऑटोमोटिव पेंट की कौन सी है? वी हैव द फर्स्ट लेयर, ठीक है, या बेस कोट भी कह सकते हो आप उसे. देन वी हैव प्राइमर, देन वी हैव दिस थर्ड लेयर दैट इज द पिगमेंट लेयर, टॉप कोट, एंड देन वी हैव क्लियर कोट. तो जो फोर्थ लेयर है वो आपकी, अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो जो आपको एट प्रेजेंट दिख रहा है उसका सरफेस के ऊपर, तो वो आपका टॉप कोट नहीं है अकॉर्डिंग टू दी दिस प्रॉपर साइंटिफिक अगर हम बात करें. बट वो क्या आपकी फोर्थ वाली कोटिंग है जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रही है फ्रॉम फर्दर वेयर एंड टेयर डैमेजेस. So this was all about the paint chemistry, ठीक है, paint types of paint. Then moving on to the significance, why they are important, because they get easily transferred as it is a transfer evidence, and usually we encounter in the vehicular accidents or when there is a contact between the two objects as per like Lukat's principle of mutual exchange. तो पेंट का क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है एक गाड़ी से या एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पे, दूसरे व्हीकल का फर्स्ट व्हीकल पे, लाइक दैट. तो जब एग्जामिनेशन करा जाएगा तो वी हैव टू चेक कि हाँ जो हमें पेंट के ट्रांसफर ट्रेसेस में मिल भी रहा है तो ये एग्जैक्टली इसी व्हीकल को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. लेस ऑफन पेंट फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल सोर्सेज सबमिटेड, लाइक जो हाउस होल्ड पेंट है वो बहुत रेयरली सबमिट होते हैं. आर्टिस्टिक वाले हो जाते हैं बट रेयरली है वो भी, क्योंकि फॉर्जरी वगैरह के केसेस, पेंट के आर्ट फॉर्जरी टाइप के केसेस में ज़्यादा होते हैं. बाकी कोई ऐसा हो रेयर होता है ऑल्दो, बट हाँ कि किसी चीज़ पे अडेयर करा हुआ पेंट मिल रहा है, दैट्स समथिंग डिफरेंट. बट येस, दे कैन बी दिस टाइप ऑफ केसेस. सोर्सेज कैन बी मोस्टली पेंट चिप्स, ठीक है. जब आप का पेंट उखड़ रहा है तो क्या होगा, या तो वो ऐसे, क्योंकि पेंट है क्या मल्टीपल लेयर की कोटिंग है, या तो वो पूरी पूरी लेयर उखड़ जाएगी. सो वी कैन हैव पेंट फ्लेक्स, वी कैन हैव पेंट चिप्स, या फिर आपका स्मीयर वेट फॉर्म में अगर आप टच हो गए उससे तो वो स्मीयर ऐसे स्प्रेड कर गया, स्वाइप या वाइप कर गया, तो दैट इज द स्मीयर. तो दे मे रिकवर ऑन द पर्सन क्लोथिंग, शूज, एनी बिलोंगिंग्स, व्हीकल जो इन्वॉल्व है, burglary, robbery केस में हो सकता है, and in the form of smears onto the garments or the clothing of the culprit or to the victim. ऑटोमोबाइल थेफ्ट अगर है, सपोज व्हीकल को रीपेंट करा है तो माइट बी ट्रेसेस ऑफ पेंट रिकवर हो सकते हैं, जैसे छोटे स्ट्रेन्स वगैरह आपको मिल गए जिससे आपको लग रहा है डाउट, यू आर इन डाउट कि हाँ द व्हीकल हैज़ बीन रीपेंटेड, ठीक है. या फिर कोई टूल वगैरह यूज करके कहीं से कुछ तोड़ा फोड़ा गया हो तो पेंट उस केस में टूल के ऊपर एडहेयर कर गया हो, या सपोज वॉल में कुछ करा गया हो तो जो वॉल के ऊपर एक टूल मार्क का डिज़ाइन बना है, ठीक है, वो आपको डिज़ाइन उस पेंट वहाँ से हटा, ठीक है, तो वो डिज़ाइन वहाँ पे आया तो वो आपको बता रहा है, कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि यस समथिंग इज फिशी, सम टूल हैज़ बीन यूज्ड देयर, लाइक दैट. देन कलेक्शन, सो इट जो आपको दिख रहा है मोस्टली फोटोग्राफ इज द बेस्ट वे, क्योंकि अगर आपका आर्किटेक्चरल टाइप का वो है, आर्किटेक्चरल पेंट है और आप वॉल वगैरह पे ऐसे किसी पे पेंट है या बहुत बड़ी कोई अलमीरा वगैरह पे है विच कैन नॉट बी टेकन एंटायरली टू दी फोरेंसिक लैब, तो फोटोग्राफ करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है. तीनों एंगल में आपको लेना है, जो हम ओवरऑल व्यू, मिड व्यू, क्लोजअप व्यू लेते हैं करते हैं, तीनों रेंजेस में आपको फोटोग्राफ लेनी है ताकि क्लियर पिक्चर हमें मिले, ठीक है. अगर आपको लूज पेंट चिप्स मिल रहे हैं किसी भी गारमेंट से या किसी भी सरफेस से तो उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है. ट्राई कि वो ऐसा ना हो कि आपको मिली इतनी लेयर थी, आपने जब उसको होल्ड करा तो वैसे पाउडर बन गई, तो इसलिए ये थोड़ा सा बहुत कॉशियसली कलेक्ट करा जाएगा यूजिंग अ पेयर ऑफ लाइक फोर्सेप को, लेकिन बहुत हल्के से होल्ड करना है टू अवॉइड द चांसेस ऑफ ब्रेकिंग, क्योंकि अगर हमने ब्रेक कर दिया उसे तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि लेयर्स कितनी थी, मल्टीपल लेयर्स, क्योंकि हम जब इसका एनालिसिस करते हैं, दैट विल बी कमिंग नेक्स्ट फॉर द स्लाइड्स, तो उन एनालिसिस में ना वी डू लेयर एनालिसिस, हम माइक्रोस्कोप में देख के चेक करते हैं कि कितनी लेयर है उसमें, ठीक है. तो वो उस लेयर से हमें पता लगता है. सपोज एक चीज़ आपको अभी पेंट हुई दिख रही है, आप जब उसका एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, आपको बट थोड़ा सा डाउट हुआ कि हाँ समथिंग इज देयर, तो आपने उसको स्क्रैपिंग ली, अब उस स्क्रैपिंग में आपको 3-4 लेयर दिखी या आपको हो सकता है 6 लेयर्स दिख गए सपोज व्हेन यू आर एग्जामिनिंग, तो वो 6 लेयर्स आपको क्या इंडिकेट कर रही है. अगर व्हीकल के केस है, आपको पता है व्हीकल पे 4 ही लेयर कोट होंगी, तो वो चारों तो आपको दिख रही हैं, बट उन चारों के अलावा आपको 2 लेयर और दिख रही है नीचे, ठीक है. सो दैट विल शो कि हाँ ये गाड़ी रीपेंट के लिए गई थी, ये रीपेंट हुए, मतलब कोई क्राइम करा गया है, या तो ये चोरी की गाड़ी है या ये गाड़ी किसी क्राइम में इन्वॉल्व थी, तो टू कंसील द क्राइम दिस थिंग हैज बीन डन. इसलिए हमेशा बहुत कॉशियसली उन्हें हैंडल करना है. पैक्ड इन स्मॉल पेपर बिंडल्स, क्योंकि या ड्रगिस्ट फोल्ड, ठीक है, पेपर एनवलप में यू कैन कलेक्ट देम बट वेरी कॉशियसली. अगर वेट पेंट है तो आप इनमें नहीं करोगे, यू अलाउ इट टू एयर ड्राई फर्स्ट. द एविडेंस रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मेयर्स और वेट पेंट किसी भी ऑब्जेक्ट पे या गारमेंट पे है तो आपको होल ऑब्जेक्ट, यू ट्राई टू कलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैक्ड इनटू द पेपर एनवलप. प्लास्टिक में आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि अगर आपको वेट स्टेन्स वगैरह मिल रहे हैं ताकि वो मॉइस्चर ना गेन कर दे, बट यू फर्स्ट अलाउ इट टू एयर ड्राई. फ्लेक्स अगर मिल रहे हैं तो आप इजीली उन्हें रिमूव करोगे, ठीक है, या ब्लेड वगैरह से स्क्रैपिंग कर सकते हो.
and always reference or the standard sample must be collected from the uncontaminated area, undamaged area. जैसे सपोज दो व्हीकल कोलाइड करें, ठीक है, हिट एंड रन कोलिजन हुआ, तो ऐसे कोलाइड करें लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको चांसेस है आपका सस्पेक्टेड सैंपल मिलने के, एंड इस व्हीकल में यहाँ पे चांसेस है, लाइक आई एम ओनली गिविंग यू एग्जांपल, ऐसे कोलाइड करें सपोज, ठीक है, तो फ्रंट पोर्शन और यहाँ पे आपको चांसेस है मिलने की, तो आप पेंट एज अ रेफरेंस और स्टैंडर्ड सैंपल भी कलेक्ट करोगे उस क्राइम सीन से, अगर वो व्हीकल का है तो व्हीकल से, जहाँ अनकंटामिनेटेड एरिया आपको लग रहा है, अनटच्ड लग रहा है, ताकि आप मैच कर सको कि जो आपको मिला, क्योंकि अगर क्रॉस ट्रांसफर एक्चुअल में हुआ है तो आपके क्राइम सीन सैंपल में तो मल्टीपल लेयर्स दिखेंगी, बट जो आप किसी और पोर्शन से या किसी और एरिया से जो पेंट कलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको क्लियर कट दिखेगा कि हाँ भाई कितनी लेयर्स आप उसमें देख पा रहे हो, कौन सा कलर आपको उसमें मिल रहा है, क्योंकि जो क्रॉस ट्रांसफर वाला है उसमें तो आपको फर्दर जो दूसरे व्हीकल की ट्रांसफर होकर पेंट आया है वो भी मिलेगा, उसके ट्रेसेस मिलेंगे जो कि आपके अनकंटामिनेटेड या अनटच्ड वाले में नहीं होंगे, सो दैट इज एक्टिंग एज योर रेफरेंस, so always try to collect that. So the collected paint must be close to the area of the car which is suspected to have come into the contact with the victim. Standard or reference samples, they are always removed by scalpel, almost like 1/4 इंच लेना है आपको, स्क्वायर इंच तक लेना है, ताकि आपके मल्टीपल लेयर्स आ सके, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप लेना है कि वो लेयर्स ही सारी डिस्ट्रॉय हो जाए. They are collected for comparison to the evidence samples when possible. In collecting the reference sample from suspect's car, a clean knife or scalpel or blade is used to carefully remove a paint chip with all of its layers. ठीक है, धीरे धीरे करके सारी लेयर्स उसमें कवर हो सके, आपको ये कोशिश करनी है while collection. Because paint is a multi-layer, as we have now studied, composite material known sample should contain all the layers. Undamaged paint की भी कोशिश करनी है सारी layers रहें properly, उसको आपको पैक करना है, ठीक है, then seal करना है, and you have to label it and send for the laboratory examination. Sticky tapes वगैरह नहीं यूज करते because paint sample उसमें stick कर सकते हैं and it will destroy. Separately आपको पैकेज करना है. Then moving on to the analysis. So analysis में again like we studied in class, we first do physical analysis, then optical and microscopic analysis, then we studied some of the chemical properties and elemental composition. तो elemental composition remains to be the same. Using instruments आप SEM यूज कर सकते हो, ठीक है, SEM EDX यूज कर सकते हो, X-ray fluorescence यूज कर सकते हो, ICP MS यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर दी एनालिसिस पर्पस, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक वगैरह वाले हैं वो उसमें इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे, लेयर्स का आपको क्लियर पता लग जाएगा क्या क्या प्रेजेंट है जिससे वो लेयरिंग होगी. सो एनालिसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन करा आपने, फिजिकल मैचिंग करा, ठीक है, तो आपको जहाँ से भी लग रहा है कि क्रॉस ट्रांसफर हुआ है तो पेंट की लेयर्स स्मेयर पोर्शन है या फिर वो लेयर्स हैं, फ्लेक्स हैं, तो आपको मैच करके देखने हैं, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास फिजिकल फिट टेक्निक, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल जिक्सॉ फिट ऑफ एजेस और मैच ऑफ द सरफेस या स्ट्राइशंस, कुछ मार्क्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन और नोन सैंपल के. देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हो आप यूजिंग स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप और लाइक पोलराइज लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट माइक्रोस्कोप, ताकि आपको लेयर स्टडी आप कर सको, उसमें आपको पता लग जाएगा कि टेक्सचर किस तरीके का है, कलर में क्या चेंज आपको दिख रहा है. नॉर्मली आपको कलर एक दिख रहा होगा बट आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो पोलराइज लाइट में, सो यू कैन सी अ वेरिएशन अमंग द कलर्स बिकॉज पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, आप एक पर्टिकुलर लाइट को ही फोकस कर पा रहे हो उस टाइम पे, फिर आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द फिल्टर्स. So you can check the appearance, size, flake size, distribution, details of the surface, आपको क्या लग रहा है उसमें, कोई sequence of layers दिख रहा है या नहीं, या layer proper नहीं है, defected है, कहीं पे कुछ portion नहीं है, like that. So you can check. Irregularities match करनी है. Cross section लिया आपने दोनों paint का, ठीक है, और you can study that. See, in this way you can study. Suppose this is unknown sample, ठीक है, ये आपको possible source का लग रहा है, आपने 2 sample और collect कर लिया along with your crime scene sample. Then why I am saying कि reference sample important होता है, you have observed it under the microscope, ठीक है, आपने पहले normal microscope में देखा है, stereo zoom में देखा, ठीक है, and then polarized में देखा, so you can able to see those variations in the color. Otherwise might be it appears to be some brownish kind of, but इसमें multiple layers है, ठीक है. So when you have observed under microscope, so now it becomes clear कि आपका ये जो layer है, sequence of layer, color of layer, thickness, it is going with this B, ठीक है, और लेकिन जो बी आपका है उसमें 2 लेयर्स और हैं जो कि इसमें नहीं है, तो हो सकता है जो क्राइम सीन में ट्रांसफर हुआ पेंट है वो ऊपर से ट्रांसफर हुआ है, एग्जैक्ट पूरे सारे लेयर्स नहीं ट्रांसफर हुए, सो दैट माइट पॉसिबल कि ये जो आपको क्राइम सीन पे हिट एंड रन में ट्रांसफर हुआ पेंट मिला है फ्रॉम व्हीकल ए, ठीक है, ये इसी सोर्स का हो, इस सोर्स का हो,
और जो दूसरा आपने देखा उसके साथ वो नहीं मैच कर रहा क्योंकि कलर डिफरेंस आ गया. सो इट इज एलिमिनेटेड एंड वी गेट कि हाँ इससे मैच हो रहा है. फिजिकल एग्जामिनेशन में लाइक स्टीरियोस्कोप माइक्रोस्कोपी हम यूज कर रहे हैं तो आपको कलर्स और क्लियरली पता लग रहे हैं. अपीयरेंस क्लियर हो रही है, हाउ इट लुक्स, मैग्नीफाई कैसे कर रहा है वो इमेज को, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्स पता लग रहा है हर लेयर में कैसे कैसे अरेंज्ड है. देन पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी यूज करके आप वो पिगमेंट एक्सटेंडर्स, ठीक है, एडिटिव्स वगैरह जो है उनकी डिटेल्स आप पता कर सकते हो. मतलब फर्दर डिफरेंट कलर वेरिएशन जो आपको पता लगेगा वो आपको लगेगा पोलराइज्ड लाइट्स. The principle for the polarized light microscopy, it is like written in the books. You can refer any forensic science book, ठीक है, जिसमें आपके सारे एनालिसिस दिए हुए हो, फोरेंसिक एग्जामिनेशन दिया हुआ हो, लाइक आप साफस्टीन रेफर कर सकते हो, नॉट बाय वगैरह रेफर कर सकते हो, तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. ठीक है, फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, हम फिल्टर्स वगैरह लगा के लाइट को पास कराते हैं, वी कैन एबल टू गेट द रिजल्ट. ठीक है, तो ये सारा ऑप्टिकल एग्जामिनेशन है फॉर द पेंट्स. देन केमिकल एग्जामिनेशन में वी कैन डू माइक्रोकेमिकल टेस्ट यूजिंग लाइक वो जो लेयर्स हैं उनको किसी सॉल्वेंट में देखना, डिजोल्व हो रहे हैं या नहीं, सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है, या फिर एसिड वगैरह के साथ टेस्ट करना तो किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं. ठीक है, या फिर लाइक कुछ बबल फॉर्मेशन आ रहा है, मे बी लाइक कुछ फ्रॉथ फॉर्मेशन हो गया हो, कोई कुछ पीपीटी सा फॉर्म हो गया हो, या कुछ उसका प्रॉपर्ली डिजोल्व हो गया हो, लाइक दैट. तो वी चेक इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स. ठीक है, किस तरीके से बिहेव, क्योंकि रेजिन्स में भी हो सकता है इनसॉल्युबल रहे, बट पिगमेंट में भी हो सकता है सॉल्युबल रहे, सो दैट विल डिपेंड. TLC we can do, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वी कैन अप्लाई. हम एक एल्यूमिनियम प्लेट लेके, ठीक है, प्री कोटेड प्लेट लेके एल्यूमिनियम की, उस पर एल्यूमिनियम की प्लेट है, उस पर सिलिका जेल कोटेड है, सो इट अपीयर्स वाइट फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, वी टेक दैट, वी पुट आर सैंपल अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड. हम दोनों को स्पॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एंड वी allow the plate to run. That is thin layer chromatography principle. कि हमने एक थिन लेयर के ऊपर अपना सैंपल और स्टैंडर्ड को स्पॉट करा एक एक ड्रॉप, और हमने उसे सॉल्वेंट के अंदर रख दिया. तो होगा क्या, जब हम उसे सॉल्वेंट के अंदर रखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्वेंट वो जो हमने स्पॉट लगाए थे वो उसके साथ साथ जैसे पानी ऊपर आगे बढ़ता रहता है तो वो आगे बढ़ता रहेगा. जैसे आप पेपर को किसी चीज पानी की उसमें डाल दो तो वो धीरे 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 पूरा ही वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा. सो इन द सेम वे ये क्या ऊपर ट्रैवल करता रहेगा एंड मेक द प्लेट वेट. फिर एक लेवल तक आके यू टेक आउट द प्लेट. ठीक है, दैट इज योर सॉल्वेंट फ्रंट एंड यू मैच की आपका सैंपल स्पॉट और आपका स्टैंडर्ड का स्पॉट इसी लेवल तक आया है. अगर सपोज आपका सैंपल का स्पॉट यहाँ आया है, जस्ट अ सेकेंड, इट्स लाइक ये आपकी प्लेट है. ठीक है, वी हैव पुट आवर सैंपल स्पॉट एंड वी हैव पुट आवर स्टैंडर्ड स्पॉट. ठीक है, वी अलाउ द प्लेट. इसमें आपका सॉल्वेंट था, इसमें हमने प्लेट रखी, तो थोड़ी देर बाद आप जब इस प्लेट को निकालोगे तो ये जो आपका ये स्पॉट था सैंपल का और आपका ये स्टैंडर्ड का था, तो ये क्या ये ट्रैवल करते हैं. तो हो सकता है सैंपल स्पॉट आपका यहीं तक ट्रैवल करा बट आपका स्टैंडर्ड स्पॉट यहाँ तक ट्रैवल करा. तो दैट मीन्स ये दोनों मैच नहीं कर रहे. अगर इसकी शेप, इसका कलर सेम आ रहा है, और या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो सैंपल स्पॉट है और जो आपका स्टैंडर्ड स्पॉट है, सैंपल स्पॉट आपका इन तीन से मिलके बना है और सेम स्टैंडर्ड का जो स्पॉट है आपका वो भी इन तीन से मिलके बना है. तो ये क्या है, ये मैच हो गए, एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक जैसे आपको अपीयर हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर मैचिंग. सो वी कैलकुलेट दिस RF वैल्यू रिटेंशन फॉर फैक्टर, ठीक है, बाय अ फॉर्मूला एंड वी गेट द रिजल्ट. देन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हम IR यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं. तो आपको वो जो रेजिन्स वगैरह है इनको केमिकली कैरेक्टराइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर जिस वेवलेंथ पे वे एब्जॉर्ब कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं वेवलेंथ, वो आपको ऑलरेडी यू हैव दैट वैल्यू इन योर लिटरेचर. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी होती है, आप मैच करते हो और आप स्टैंडर्ड की भी वैल्यू लेते हो, सैंपल की भी लेते हो एंड यू मैच इट विद द लिटरेचर. तो आपको आइडिया लग जाता है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. रमन आप कर सकते हो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा एंड इट गिव्स द वैल्यूज. माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप अटैच कर सकते हो, मींस माइक्रोस्कोप में भी देख रहे हो और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रन करा रहे हो, सो इट विल गिव यू अ मोर डिटेल थिंग. देन क्रोमेटोग्राफी में आप गैस क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हो फॉर द इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस. आप उस पेंट सैंपल को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे विच इज नोन एज पायरोलिसिस. ठीक है, उसके बाद आप उसका GC करोगे, इट विल रन इनटू द GC सिस्टम एंड गिव यू क्रोमेटोग्राम लाइक दिस. तो जितने पेंट में एक्सटेंडर, बाइंडर्स, पिगमेंट सब कुछ है, तो ये आपको ऐसे पीक की फॉर्म में सेपरेट होकर मिल जाएंगे. देन यू कैन डू सेमी DX, X-ray fluorescence.
देन यू कैन यूज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ऑल्सो, अगर कहीं पे कुछ पर्टिकुलर लेड वगैरह टाइप की चीज़ें या और मतलब ऐसे कुछ मेटल्स वगैरह यूज हुए हैं या कोई ऐसा पर्टिकुलर मेटल है आपको लग रहा है उसमें है, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. So now in the present day we have like research is being so much done कि आपके पास पहले तक लाइब्रेरी नहीं होती थी, बट अब जैसे कंपनीज अपने पेज मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो इनके पास डाटाबेस रहता है. ठीक है, ये प्लस ऐसे सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल बन गए हैं, इन पे भी इतना काम हो रहा है कि लाइब्रेरीज बन गई हैं जिससे कि आप मैच कर सकते हैं यहाँ ये पर्टिकुलर पेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, केमिकल कॉम्पोजिशन. So this completes today's session.